हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 16 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, SSC, CGL, CHSL ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਚਿਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀ 12-13 ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲ। COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਇਵੈਂਟਸ, ਰੈਂਕਿੰਗਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਕੀਮਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सब तो पहले COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਨੇ COVID-19 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਬਲਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ COVID-19 ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਨੇ ਮੋਹਨ ਖਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਨੇ ਮੋਹਨ ਖਤਰਾ ਦੁਆਰਾ 10 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ। नेक्स्ट है रशिया ने फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी है जिसने लॉन्च की है COVID-19 वैक्सीन, जिसने COVID-19 वैक्सीन रजिस्टर करवाई है कि यह COVID-19 इफेक्टेबल है, जिसका नाम इन्होंने स्पूतनिक 5 रखा है। बेसिकली सोवियत यूनियन द्वारा 1957 की पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई सी इस नाम तो, उसके नाम तो ही इन्होंने वैक्सीन का नाम रखे। नेक्स्ट है माइक्रोवेव डिवाइस। अच्छा, इस रिलेटेड एक न्यूज़ भी है। कल आप मंडे ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਲੱਸ ਸੰਡੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੱਸ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਿਵਾइस। ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਿਵਾइस ਹੈ ਅਤੁੱਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਿਵਾइस, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ MSME ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MSME ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ DRDO ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ DRDO ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़। सब तो पहले पेटीएम ने इंडियाज़ फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड स्मॉल POS डिवाइस लॉन्च किया है। इंडिया का पहला पॉकेट एंड्रॉयड स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस ਨੂੰ लॉन्च किया है पेटीएम ने। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट लीप प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट किया, जिसके अंडर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी डिफरेंट स्टार्टअप्स में। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामेनेई, इन्हों द्वारा इन्हों का ट्विटर हैंडल हिंदी के लॉन्च किया गया। ईरान द्वारा
ਅਯਤੋਲਾ ਖਾਮੇਨੀ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗੇਲੀਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਕਾਵਕਾਸ 2020 ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਵਕਾਸ 2020। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਤਰਾਖਾਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਬਮਰੀਨ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਜੋ ਕਿ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 4G ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਵੱਛਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕੇਂਦਰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਹੁਬਲੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਵ ਇੰਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। KVIC ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਲੂਯੂ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ KVIC ਇੱਕ ਸਿਲਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 9 ਟਰਾਈਬਲ ਫਾਈਟਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 9 ਟਰਾਈਬਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਕਾਈ ਰੂਟ ਐਰੋਸਪੇਸ ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਰੂਟ ਐਰੋਸਪੇਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਮਨ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਮਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ CV ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ RK ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲੈਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਕਰੇਜ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੋ ਲਿਓਪਾਰਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਨੀਮਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ? ਸਨੋ ਲਿਓਪਾਰਡ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ 에ਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ ਬੀਗ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਡ ਬਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬਾਇਓ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਐਨਰੀਚਡ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਗਲੋਬਿਊਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ
एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जिसनों कहा गया कृषि मेघ। कृषि मेघ नाम का एक नैशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम ਨੂੰ लॉन्च किया गया। इस दे अंडर की होएगा, इस दे अंडर बेसिकली जी इंडियन एग्रीकल्चर के उत्ते जी एजुकेशन सिस्टम है उसनों प्रमोट किया जाएगा। जॉइंट वेंचर है यह ICAR और वर्ल्ड बैंक का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और वर्ल्ड बैंक का जॉइंट वेंचर है। प्रोजेक्ट 1100 करोड़ का और 4 साल का इसका टाइम पीरियड रखा गया। नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले ड्वेन जॉनसन ने फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में टॉप किया। ड्वेन जॉनसन द्वारा फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट 2020 में टॉप किया गया और इस लिस्ट के टॉप 10 के इकलौते बॉलीवुड एक्टर ने, उन्होंने नाम इंपोर्टेंट बनेगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इज़ द ओनली बॉलीवुड एक्टर अमंग टॉप 10 और 6वें नंबर पर इन्हों का नाम है 48.5 मिलियन की कमाई देना। नैक्सट है रिलायंस 96वें नंबर पर रहा है फोर्ब्स की टॉप ग्लोबल कंपनीज 2020 की लिस्ट के। फोर्ब्स की फॉर्चून्स टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020 की लिस्ट के और फर्स्ट प्लेस से वॉलमार्ट रहा। नैक्सट है एक इंपोर्टेंट रैंकिंग सी अमृत स्कीम की इंप्लीमेंटेशन की रैंकिंग। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम नू इंप्लीमेंटेशन नू टॉप किया उड़ीसा ने। फर्स्ट प्लेस ते उड़ीसा रहा, सैकेंड प्लेस चंडीगढ़ और थर्ड प्लेस ते तेलंगाना रहे। ठीक है जी। इस स्कीम नू जून 2015 के लॉन्च किया गया सी, इंपोर्टेंट बनता है। प्लस 4th एंड 5th प्लेस ते गुजरात और कर्नाटका रहे। नैक्सट है इंपोर्टेंट स्कीम्स के सब तो पहले आंध्र प्रदेश ने YSR चयूथा स्कीम लॉन्च की थी। रूरल इकनॉमी नू प्रमोट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बेनीफिट प्रोवाइड करवाने के लिए YSR चयूथा स्कीम आंध्र प्रदेश। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा एक इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नू लॉन्च किया गया। नैक्सट है उड़ीसा बिकम्स फर्स्ट स्टेट ऑफ कंट्री एंड फर्स्ट कंट्री इन द इंडियन ओशियन रीजन। उड़ीसा पहली स्टेट बनी है कंट्री दे विच और पहली कंट्री बनी है इंडियन ओशियन रीजन दे विच, जिसके विलेजिस नू सुनामी रेडी टैग दिता गया, जिसनों सुनामी रेडी टैग दिता गया। बेसिकली एक कैंपेन है यूनैस्को का जिसके अंडर पहले ही प्रिपेयर किया जा सके सुनामी प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपू कोई पता है कि कोई बुरी चीज़ होने वाली है तो उसके लिए आपू पहले ही प्रिपेयर होना एक अच्छी गल है। इस एक कैंपेन है यूनैस्को का सुनामी रेडी टैग उड़ीसा में प्रोवाइड किया गया। उड़ीसा के 2 विलेजिस में विलेजिस की अगर आप गल करिए वेंकटा रायपुर गंजम डिस्ट्रिक्ट के और नौलाई शाही जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के उड़ीसा के इन्हों सुनामी रेडी टैग दिता गया। नैक्सट है मुंबई बिकम्स फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई पहली सिटी बनी है इंडिया की जिसने वूमेन सिंबल यूज़ किए गए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के उत्ते वूमेन सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। मुंबई ऐसी पहली सिटी बनी है इंडिया की। नैक्सट है मेघालय कैबिनेट ने अप्रूव की है रिजर्वेशन किस दे लई वूमेन्स दे लई किस दे विच विलेज एम्पलॉयमेंट काउंसिल दे विच मेघालय स्टेट ने रिजर्वेशन वूमेन्स दे लई अप्रूव की है। ठीक है जी। नैक्सट है त्रिपुरा ने स्कीम लॉन्च की है बोचार बचाओ। बेसिकली इस स्कीम के अंडर इन्हों द्वारा इस स्टेट द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे त्रिपुरा द्वारा बोचार बचाओ स्कीम। नैक्सट है छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च इंदिरा वन मित्र योजना फॉरेस्ट डवेलर्स के लिए इंदिरा वन मित्र योजना लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल द्वारा। गुजरात चीफ मिनिस्टर कौन ने विजय रूपानी और इन्हों द्वारा लॉन्च किया गई मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी द्वारा लॉन्च की गई। असम गवर्नमेंट ने की किया असम नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस रेगुलेशन ऑफ फी रूल्स 2020 नू अप्रूव किया। असम की कैबिनेट ने की किया असम दे विच जिहड़े नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस ने यानी कि
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 34th ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਬਜਾਲੀ ਨੂੰ 34th ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਸਮ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ 13 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ 25 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੰਡਰ PM ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ, PM ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। PM ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ 24 ਫੈਬਰਰੀ 2019 ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਗੋਰਖਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਰਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਵੀਵਰਸ ਔਰ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਇਨਟੂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਆਰਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਵੀਵਰਸ ਔਰ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ UP ਦੀ 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲੌਂਗ ਕੈਂਪੇਨ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਨਰ ਅਪ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਔਨ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਨੂੰ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ USA ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਸਟਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ USA ਕੰਪਨੀ ਬੋਸਟਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ IT ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ IT ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬੋਸਟਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ IIT ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ IIT ਬੰਬੇ ਔਰ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਅ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਇਨ ਕਨੌਟ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। IIT ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NHAI ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ for the use of artificial intelligence in data driven decision making and advanced data management of highways ਦੇ advanced data management ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ data driven decision making ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ artificial intelligence ਦੇ use ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ
हालांकि खासी लंबी चौड़ी न्यूज़ है। डायरैक्ट याद रखने, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए IIT दिल्ली के नाल NHAI नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एग्रीमेंट साइन किया CSIR दे नाल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च, हाँ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च इस दे नाल FSSAI ने एग्रीमेंट साइन किया किस दे लई विद एम टुवार्ड कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिसमीनेशन इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन दे एरिया दे विच रिसर्च करन दे लई CSIR दे नाल एग्रीमेंट साइन किया FSSAI ने। इस तो इलावा FSSAI द्वारा ही फूड सिस्टम विजन प्राइज़ जिता गया फॉर इट्स ईट राइट विजन स्कीम के लिए FSSAI ने की जितया फूड सिस्टम विजन प्राइज़ 2011 दे विच FSSAI बनाया गया सी। न्यू दिल्ली दे विच हैडक्वार्टर है और अरुण सिंघल रिसेंटली इसके हैड अपॉइंट किए गए हैं। नैक्सट है LIC ने 4.23% स्टेक बाय किया येस बैंक दे विच। येस बैंक दे विच LIC का पहले ही 0.75 स्टेक सीगा, प्लस इन्होंने 4.23% स्टेक होर बाय कर लिया और टोटल इन्हों का हुण 4.98% स्टेक हो चुका है येस बैंक दे विच। नैक्सट है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इस दे विच इसनूं अपॉइंट किया गया एज ऑफिशियल रिटेलर बैंकिंग पार्टनर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स IPL टीम। अगर आप गल करिए IPL की इस साल के IPL की तो IPL का 13th एडिशन है ये और इसनूं हेल्ड कर रहा है UAE यूनाइटेड अरब एमीरेट्स, ठीक है जी। तो इस दे विच जिहड़ी चेन्नई सुपर किंग्स टीम है, अच्छा इस रिलेटेड एक होर न्यूज़ सी कि वीवो नूं इसका जिहड़ा ऑफिशियल पार्टनर सी वो कैंसल कर दिता गया, ठीक है। तो हुण इस दे विच जिहड़ी चेन्नई सुपर किंग्स IPL टीम है उसका ऑफिशियल रिटेलर बैंकिंग पार्टनर है जिहड़ा वो अपॉइंट किया गया इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक नूं। नैक्सट है एग्जिम बैंक द्वारा 250 मिलियन टू 50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया मोजाम्बिक नूं 250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर इंप्रूविंग पावर सप्लाई क्वालिटी नूं इंप्रूव करने दे लई प्रोवाइड किया गया। नैक्सट है इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद मालदीव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको जोन टूरिस्ट जोन। इंडिया ने मालदीव्स दे नाल डायरैक्ट क्वेश्चन कि इंडिया ने किहड़ी कंट्री दे नाल 5 इको जोन टूरिस्ट जोन डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स दे नाल। नैक्सट है यूरोपियन यूनियन कितनी अमाउंट दे रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूरोपियन यूनियन कितनी अमाउंट दे रहा है या फिर केड़ी ऑर्गेनाइजेशन 1.65 मिलियन यूरोज अमाउंट प्रोवाइड कर रही है किस दे लई ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए उन्हां एरियाज़ नूं साउथ एशिया के उन्हां एरियाज़ नूं जिहड़े कि फ्लड दे नाल प्रभावित होए ने, बेसिकली बांग्लादेश इंडिया और नेपाल नूं, ठीक है जी। जिथे फ्लड आया सीगा इंडिया दे विच अगर आपां गल करिए नेपाल काफ़ी असम इंडिया दे विच असम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित से। नैक्सट है DAC इस दे रिलेटेड भी एक न्यूज़ है, असम के रिलेटेड भी फ्लड के रिलेटेड ही एक वार्निंग सिस्टम जारी किया गया उसनूं भी आपां कल डिस्कस करेंगे। नैक्सट है डिफेंस एक्विजिशनल काउंसिल DAC डिफेंस एक्विजिशनल काउंसिल ने एक प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल पास किया 8722 करोड़ रुपए का 8722 करोड़ जिसके अंडर 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियन एयर फोर्स में। नैक्सट है सऊदी अरेबिया द्वारा पाकिस्तान नूं लॉन और ऑयल सप्लाई बंद की गई है। सऊदी अरेबिया ने ऑयल सप्लाई पाकिस्तान नूं बंद की है और जिहड़ा इन्होंने लोन प्रोवाइड किया गया सी उसनूं भी वापस ले लिया और कितना लोन वापस ले लिया 1 बिलियन US$ वापस लिते गए हैं। अगर आप दोनों कंट्रीज़ की गल करिए दोनों कंट्रीज़ OIC का पार्ट ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का जिसनों 1967 के बनाया गया 57 मैंबर कंट्रीज़ ने इसदियां 57 मैंबर्स ने OIC और इस दे विच दोनों कंट्रियां पार्ट ने और इस दे विच ही सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान नूं ऑयल सप्लाई बंद की जाएगी। नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट बुक्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले नीना राय द्वारा एक बुक किस बुक के ऑथर ने अमेजिंग अयोध्या हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा बर्थ प्लेस।
नेक्स्ट है मिजोरम चीफ मिनिस्टर पी जोरमथांगा। पी जोरमथांगा द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई कोरोना कविता कल जिसनों लिखा गया गवर्नर ऑफ मिजोरम पी एस श्रीधरन पिल्लई द्वारा रिलीज़ की गई मिजोरम चीफ मिनिस्टर द्वारा और लिखी गई है मिजोरम गवर्नर द्वारा ही रिपब्लिक डे 2020 और द स्पीक्स द गवर्नर नाम की बुक्स भी लिखियां गई हैं। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्होंने रिलीज़ की कनैक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इस बुक ਨੂੰ रिलीज़ किया वाइस प्रेजिडेंट M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ। वाइस प्रेजिडेंट M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एज ए वाइस प्रेजिडेंट 3 साल पूरे होने ते कनैक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इन्हों के उत्ते एक बुक रिलीज़ की गई और इस बुक का ई वर्जन रिलीज़ किया गया प्रकाश जावेदकर जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा ई वर्जन इस बुक का रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट है 14th दलाई लामा 14वें दलाई लामा और जर्मन इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रांस अली 14वें दलाई लामा और जर्मन इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रांस अली द्वारा मिलकर एक बुक रिलीज़ की गई है ओनली आवर होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ओनली आवर होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट है योगेंद्र यादव द्वारा बुक लिखी गई है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और कमलेश सुतार द्वारा जी बुक लिखी गई है उसका नाम है 36 डेज। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। सब तो पहले स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जिसनों बेसिकली स्टार्ट किया गया सी इनोग्रेट किया गया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और इसका फिनाले जिसका फाइनल एडिशन है उसनों इनोग्रेट किया सीगा एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। इसका फर्स्ट प्राइज़ किसने जीता डाइट पुणे ने। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 लॉन्च किया गया। इस रिलेटेड भी बेसिकली एक न्यूज़ थी इन्होंने एक मास्क और एक PP शायद डेवलप किया है उसके बारे में आप कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गोवा ने एक GI टैग हासिल किया है खाजे डिश के लिए हरमाल मसाला के लिए और मोजरा बनाना के लिए। खाजे हरमाल और मोजरा बनाना के लिए GI टैग किसनों दिता गया है गोवा नूं दिता गया। नेक्स्ट है नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 जीते किस दे लई फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। अगर आप नितिन सेठी की गल करिए ये जर्नलिस्ट ने हुफिंगटन पोस्ट दे विच और इन्होंने इस अवार्ड में जीतिया पैसा पॉलिटिक्स स्टोरी के लिए। प्लस शिव सहाय सिंह जर्नलिस्ट ने द हिंदू दे विच और उन्होंने यह अवार्ड दिता है डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन के लिए। नैक्सट है इंपोर्टेंट डेज के वाल चलते हैं। सब तो पहले क्विट इंडिया मूवमेंट की 78th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की 78th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। अगर आप गल करिए इस मूवमेंट को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन कह सकते हैं महात्मा गांधी द्वारा 1942 के शुरू किया गया। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है जिसकी थीम रही COVID-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलेंस। बेसिकली इसनों दूसरे नाम के कह सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स इस तरीके का डे ऑब्जर्व किया गया है। इसनों यूनाइटेड नेशनस द्वारा 1994 पहली बार ऑब्जर्व किया गया सी। ठीक है जी। नैक्सट है 10th अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10th अगस्त को ऑब्जर्व किया गया जिसकी थीम रही सी बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करने के हो अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट दे लिए। फूड लॉस और वेस्ट बेसिकली अगर आप गल करिए इंटरनेशनल लैवल के उत्ते फूड क्राइसिस को रोकने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ
फूड लॉस्ट एंड वेस्ट इसनू ऑबजर्व किया जाएगा FAO द्वारा, जिसका हैडकुआटर रोम इटली दे विच है और इसनू 29 सितंबर नू पहली बार ऑबजर्व किया जाएगा। हैडकुआटर कित्थे है? रोम इटली दे विच और इसके हैड ने क्यू डोंगयू। नैक्सट है प्रकाश जावेदकर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट अफेयर्स मिनिस्टर ने इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया सुरक्षा नाम का पोर्टल लॉन्च किया ह्यूमन एलीफेंट कॉन्फ्लिक्ट नू रोकने के लिए। बेसिकली इंटरनेशनल एलीफेंट डे दो क्वेश्चन लुके हुए ने थे कि सब तो पहला इंटरनेशनल एलीफेंट डे कदों ऑबजर्व किया गया 12 अगस्त नू और इस दिन प्रकाश जावेदकर ने जिहड़ा पोर्टल लॉन्च किया उसका की नाम है सुरक्षा या फिर सुरक्षा पोर्टल, जो कि ह्यूमन एलीफेंट कॉन्फ्लिक्ट नू रोकने के लिए नैशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसनू किसने लॉन्च किया? प्रकाश जावेदकर ने। नैक्सट है 12 अगस्त नू इंटरनेशनल यूथ डे ऑबजर्व किया गया। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त नू ऑबजर्व किया गया, जिसकी थीम रही यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नैक्सट है इंडिया ने 74th इंडिपेंडेंस डे इंडिया ने अपना 74th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त नू ऑबजर्व किया। नैक्सट है कुछ अपॉइंटमेंट्स वाल चलते हैं। सब तो पहले RBI द्वारा एक कमेटी बनाई गई, एक कॉन्स्टिट्यूट की गई एक कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन ऑन नॉर्म्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड लॉन्स। कोविड-19 के रिलेटेड जोड़े स्ट्रेस्ड लॉन्स ने उन्होंने दे लई एक रूल्स बनाने रिकमेंडेशन देने के लिए कमेटी बनाई गई RBI द्वारा। इसके हैड पॉइंट किए गए KV कमात, जो कि NDB दे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि शंघाई नहीं, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है KV कमात उसके हैड से उन्होंने इस कमेटी का हैड पॉइंट किया गया। नैक्सट है प्रदीप कुमार जोशी चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने UPSC के। हरदयाल प्रसाद जो कि SBI कार्ड्स के फॉर्मर हैड रह चुके हैं, इन्हों अपॉइंट किया गया MD CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस का हैड अपॉइंट किया गया। नैक्सट है गौरमेंट द्वारा ही एक कमेटी बनाई गई है किस दे लिए? सीलिंग रेट्स नू ड्यूटी रीइंबर्समेंट स्कीम दे लिए। बेसिकली ड्यूटी रीइंबर्समेंट स्कीम जो कि एक्सपोर्टर्स नू प्रोवाइड की जाती है, उसके सीलिंग रेट्स नू फिक्स करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। किन्ना दे नाम कौन चेयरमैन ने इसके? GK पिल्लई की चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बनाई गई। नैक्सट है इंस्पैक्टर जनरल ऑफ CRPF के इंस्पैक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं PS रानिप से। हालांकि खास इंपोर्टेंट नहीं बनता नाम, अपने लिए बेसिकली चेयरमैन इंपोर्टेंट बनते होंगे ने, जो कि कौन ने? AP माहेश्वरी। बट रीसेंट अपॉइंटमेंट इस करके आप डिस्कस कर रहे हैं। मे भी क्वेश्चन आ भी सकता है किसी ना किसी बैंकिंग एग्जाम या SSC के एग्जाम के। CRPF 1939 के बनाई गई सी, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। फैक्ट्स काफ़ी इंपोर्टेंट बनते हैं, फैक्ट्स किसी भी एग्जाम के पूछे जा सकते हैं। नैक्सट है KN आनंद प्रभा जो कि केरला के लैग स्पिनर ने, इन्हों ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स की लिस्ट के ऐड किया गया। ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स की लिस्ट के ऐड किया गया। सोमा मंडल नू चेयरमैन अपॉइंट किया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके नवे चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं सोमा मंडल। हर्ष कुमार बनवाला चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस के। पतंजलि झा प्रिंसीपल चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं इनकम टैक्स के। महेंद्र राजपक्षा ने चौथी बार ओथ लीती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका के रूप में। प्रेजिडेंट ऑफ बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको प्रेजिडेंट ऑफ बेलारूस, कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी रूबल चलती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू वॉल्टर मार्टोस नू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया पेरू का, कैपिटल लीमा है, करेंसी इत्थे सॉल चलती है। नैक्सट है कमाला हैरिस नू नॉमीनेट किया गया डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी के रूप में जो बिडन जो कि वाइस प्रेजिडेंशियल नॉमिनी ने USA के प्रेजिडेंट बनने के लिए नॉमिनी ने इलैक्शन के खड़े होंगे जो बिडन ने। ठीक है जी, उन्होंने अपना वाइस प्रेजिडेंट चूज़ किया है कि
वाइस प्रेजिडेंट के लिए नॉमीनेट किया कमाला हैरिस नूं फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है जी। अगर ये जितते हैं तो फर्स्ट वूमेन वाइस प्रेजिडेंट होंगे USA के। नैक्सट है मुहम्मद उल्द बिलाल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं मोरिटेनिया के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं मुहम्मद उल्द बिलाल। कैपिटल नोएका चौट है और करेंसी उइगवा चलती है। नैक्सट है लेबानोन के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब दोबारा रिसेंटली रिजाइन किया गया। लेबानोन प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब रिजाइन फ्रॉम इट्स पोस्ट। बीडेड कैपिटल है करेंसी पाउंड चलती है। इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू केनिया वीरेंद्र कुमार पॉल अपॉइंट किए गए हैं। इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू उज़बेकिस्तान अपॉइंट किए गए हैं मनीष प्रभात। राम कुमार वर्मा नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कोंगो। 3 बैक टू बैक हाई कमिश्नर की अपॉइंटमेंट केनिया वीरेंद्र कुमार पॉल, उज़बेकिस्तान मनीष प्रभात और कोंगो के लिए रामकरण वर्मा। नैक्सट है स्पोर्ट्स न्यूज़ के सब तो पहले इंडिया होस्ट करेगा ICC T20 मैंस वर्ल्ड कप 2021। ICC T20 मैंस वर्ल्ड कप 2021 इंडिया होस्ट करेगा और 2022 T20 मैंस वर्ल्ड कप 2022 कौन होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। इस तो इलावा ICC वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਲਈ पोस्टपोन किया है जिसनों न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। ठीक है। 3 इंपोर्टेंट टूरनामेंट्स T20 मैंस वर्ल्ड कप 2021 इंडिया, 2022 ऑस्ट्रेलिया प्लस वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਲਈ पोस्टपोन किया गया और होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने CISCE के नाल मिलके CISCE द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड CBSE के नाल मिलके खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। खेलो इंडिया मोबाइल ऐप के उत्ते ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है किसके लिए? PE टीचर्स और प्रिंसीपल्स के लिए। ठीक है जी। और खेलो इंडिया तो याद रखना है खेलो इंडिया का जो 4th यूथ एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन हरियाणा पंचकुला होस्ट कर रहे हैं। प्लस किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उन्होंने अनाउंस भी किया है कि स्टेट लैवल के उत्ते भी हर साल एक खेलो इंडिया गेम्स हैल्ड कीतियां जान सारी स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर नूं कहा गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है और संदीप प्रधान इसके रिसेंटली हैड अपॉइंट किए गए। नैक्सट है रेड बुल्स मैक्स वर्सेटेपन बेसिकली फॉर्मूला 1 की 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स डिफरेंट ग्रैंड प्रिक्स हैल्ड किए जाते हैं सब और 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स है जोड़ा जितया है मैक्स वर्सेटेपन ने। ठीक है। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं। किहड़ी कंपनी के लिए खेलते हैं? रेड बुल के लिए खेलते हैं। नैक्सट है पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन ने डिसाइड किया है कि जो नवा स्टेडियम बनेगा मूलनपुर का नवा स्टेडियम है उसका नाम महाराजा यादविंदर सिंह के नाम के उत्ते रखा जाएगा जिन्होंने टेस्ट मैच खेलिया सी इंडिया का 1934 के विच। इंडिया के लिए टेस्ट मैच के पार्टिसिपेट किया 1934 के विच। महाराजा यादविंदर सिंह जो कि पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के फादर ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह के फादर ने। अज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो और इस चीज़ का जवाब जरूर देना कि क्लास को MCQ फॉर्म के रखिए या फिर इस डिटेल्ड फॉर्म के। डिटेल्ड फॉर्म के एक अच्छे तरीके नाल रिवीजन होंदी है पर MCQ फॉर्म के कुछ न्यूज़ ऐसियां होणगियां जो कि स्किप हो जाएगियां। ठीक है। मेरी सलाह है कि डिटेल्ड फॉर्म के आप क्लास जारी रखिए। बाकी अगर तुम कहोगे कि MCQ फॉर्म के जारी रखनी है तो आप MCQ फॉर्म के जारी रखेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना इस गल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।